السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم، آج اور آپ اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم تمامی مسلمانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو آپس میں ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ نور پر علماء سنت والجماعت کا قافلہ موجود ہے، ہم معروف نہیں ہیں۔ بلبل طیبہ جناب ہلال ٹانڈوی صاحب جو ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں، آج آپ کے دیار محبت میں، اولاد کے دیار میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اور جانتے ہو حضرت نے بتایا نا، حقیقت یہی ہے کہ میں التفات گنج میں بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، ہے نا، کیونکہ جے پور میں میری فلائٹ کینسل ہوئی تو دوبارہ مجھے دوسرا تتکال ٹکٹ بنوانا پڑا، پھر لکھنؤ سے جانتے کل کا کھانا کھا کر ابھی میں چائے تک نہیں پیا تھا، صرف التفات گنج مجھے آنا تھا، ٹھیک ہے ہاں۔ تو یہاں آنے کے بعد ماحول پتا چلا کہ یہاں کے لوگ تقریر سننا پسند کرتے ہیں نا، ہاں تو انشاءاللہ تعالی جو لوگ گئے ہیں نا، اگر وہ جگ رہے ہوں گے تو پکا ہے کہ وہ آئیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس التفات گنج کی زمین پر رحمت نور کی بارش عطا فرمائے، یہاں کے مسلمانوں میں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ عرض معروف سے پیشتر ہم آپ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار ہم غریبوں کے غم گسار مدنی سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جب ممبر پر آیا تو پتہ چلا کہ حضرت علامہ اکرم جلال پوری صاحب قبلہ آپ سے بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ تھوڑا، لیکن میں اپنی قوم کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے سماج اور معاشرے میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہماری قوم کے لوگوں کا ماحول جانتے ہو کتنا خراب ہو چکا ہے۔ قرآن کی تعلیم کے مطابق اگر کسی محفل کو رکھا جائے تو ایسے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ حضرت بار بار گزارش کر رہے تھے کہ تھوڑا آگے آ جاؤ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری قوم کے لوگوں کو جب نبی کے میلاد کی بات آتی آنے کے لیے پکارا جاتا ہے، مگر التفات گنج کی زندگی کو گزارنے والوں، جن لوگوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے وہ لوگ بھی جان لے، اگر اسی ممبر کے علاوہ، ان علماء کے علاوہ اگر اسی ممبر کو ہٹا کر کوئی اور اسٹیج لگایا گیا ہوتا، کسی آوارہ بازارو لڑکی کو لا کر ڈانس اور ناچ کا پروگرام رکھا گیا ہوتا، تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مسلمانوں، کسی مسلمان کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ مسلمان تھوڑا سا آگے آ جا، مسلمان تھوڑا سا
بیٹھ جا, مسلمان فلاں جگہ سے تو چل کر آ جا. تمہارے لیے اے مسلمانوں بیٹھنے کا انتظام بھی نہ ہوتا. ہماری قوم کے لوگ کھڑے کھڑے پوری رات لڑکیوں کے ناچ اور ڈانس میں اپنی عزتوں کو نیلا کرتے ہیں. حقیقت مسلم نے اپنے وقار کو کس طریقے سے مجروح کیا ہے. نبی کے میلاد میں کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے, نبی کے ذکر میں جانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے, مگر عورتوں کے ناچ اور ڈانس کو دیکھنے کے لیے 50 کلومیٹر 25 کلومیٹر کا سفر یہ کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. رات کی تاریکی کو نہیں دیکھتے ہیں, ٹھنڈک کو نہیں دیکھتے ہیں, اندھیرے کو نہیں دیکھتے ہیں, طوفان کو نہیں دیکھتے ہیں, برسات کو نہیں دیکھتے ہیں. اے مسلمانوں جانتے ہو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس فرصت ہوتی ہے جب اسی بھارت کی زمین پر ہماری قوم کے لوگوں کو اپنے آپ میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ہماری قوم کے لوگوں کو للکارا جاتا ہے, ہماری آبرو کا سودا کیا جاتا ہے, کبھی مسلمان کی عزت کو نیلام کیا جاتا ہے. تو بھارت کا مسلمان کہتا ہے نثار احمد نظامی آخر بھارت میں ہمیں کیوں ستایا جا رہا ہے, بھارت میں ہماری آبرو کو کیوں لوٹا جا رہا ہے, بھارت میں ہمارے وقار کو کیوں مجروح کیا جا رہا ہے. تو سنو مسلمانوں, آج جو دنیا کے اندر تم نشانہ بنا رہے ہو, جو تمہاری عزتوں پر حملہ کیا جا رہا ہے, یہ مسلم ہونے کی بنیاد پر نہیں, کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر نہیں, قرآن کی تلاوت کرنے کی بنیاد پر نہیں, داڑھی اور ٹوپی رکھنے کی بنیاد پر نہیں. اگر آپ تم ستائے جا رہے ہو تو اپنے گندے اعمال کی بنیاد پر ستائے جا رہے ہو. جس دن تمہارا اعمال اچھا ہو جائے گا, دعوے کے ساتھ کہتا ہو اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی, تمہاری دنیا بھی سنورے گی, تمہاری آخرت بھی سنورتی ہوئی. لیکن حالات کا جائزہ لو مسلمانوں, اپنی سماج اور معاشرے کا جائزہ لو. ہم نے اپنی قوم کے لوگوں کو کس طریقے سے بدنام کیا ہے, ہم نے اپنی عزتوں کو کس طریقے سے نیلام کیا ہے. میں نے آپ سے سلام کیا تھا تو سلام کے جواب میں آپ نے بخیلی دکھائی. میں نے کہا مسلمان نبی پر درود پڑھ دے, مسلمان پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر دے. حقیقت میں مسلمانوں اکثر و بیشتر مسلمانوں کی زبانیں خاموش تھی, اس لیے کہ مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی پر درود پڑھنے سے رب کائنات ہم پر کتنا کرم کرتا ہے. جب نبی کے میلاد میں نہیں آئے گا تو مسلمان کو کیسے خبر ہوگی کہ نبی پر درود کیسے پڑھا جائے. اور جانتے ہو ایک پلیٹ فارم تو جلسہ گاہ ہے, اور ایک پلیٹ فارم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا جمعہ کا دن ہے. اور جانتے ہو ہماری کرتے ہیں جمعہ کے دن مسجد میں اس وقت جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جب امام صاحب خطبہ لے کر منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تب ہماری قوم کا نوجوان, ہماری قوم کے مسلمان حقیقت میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں, تب انہیں کیسے خبر ہوگی تم ستائے جا رہے ہو, تم پریشانیوں کے عالم میں مبتلا ہو. جس دن پیغمبر اسلام کی غلامی کا پٹا اپنی کاتر میں ڈال کر نبی کی شریعت پر چلنا شروع کرو گے, دعوے کے ساتھ کہتا ہو اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی, تمہاری دنیا بھی سنورے گی, تمہاری آخرت بھی سنورتی ہوگی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہے نا. اور آج نبی پر درود پڑھنے کی بات آتی ہے تو جانتے ہو ہمارے یہاں کیا ہے, خاص کر میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں بھی سرزمین امرڈوبا سے تعلق رکھتا ہوں. امرڈوبا کے اندر بھی لوم کا کاروبار بہت تیزی سے چلتا ہے, میں اسی جگہ سے تعلق رکھتا ہوں, میرا قصبہ امرڈوبا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر خاص طور پر ہماری برادری کی آبادی زیادہ ہوتی ہے نا, جہاں پر لوم کا کاروبار زیادہ ہوتا ہے, وہاں چائے کی دکانیں بھی کثرت سے ہوا کرتی ہے, چائے کی دکانیں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر ہماری قوم کے لوگ پورے علاقے کی پنچایت کرتے ہیں. حقیقت میں مسلمانوں دیکھا گیا ہے ایک چائے پی کر 2 گھنٹہ اپنے وقت کو برباد کرنے پر ہماری قوم متعاون رہتی ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ نبی پر جب درود پڑھنے کی بات آتی ہے تو ہماری قوم کے لوگ اسی چائے کی دکان پر اکٹھا ہو کر بحث کرتے ہیں. میرے بھائی یہ بتا, ہم جو نبی پر درود پڑھتے ہیں, ہم جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں, کیا ہمارے آقا ہمارے درود کو سنتے ہیں؟ اے مسلمانوں, جب سے ہم نے اپنے گھر کے فیصلے کو چائے کی دکانوں پر سلجھانا شروع کیا, ہم نے اپنے گھر کے جھگڑوں کو چائے کی دکانوں پر سلجھانا شروع کیا, تب سے حقیقت میں مسلمانوں ہندوستان کے اندر دیکھ لو کہ ہماری شریعت کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش پارلیمنٹ کے اندر کرنا پڑا. اے مسلمانوں, اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے لوگوں کو آج ہر بات کا معاملہ چائے کی دکانے پر آمادہ ہے. مسلمانوں گھر کے معاملات کو
घर के अंदर फैसला करने की कोशिश किया करो। घर के झगड़े को बाहर लाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर सुलझाने की कोशिश किया करो। आज हालात किस पर भी आ चुके हैं कि मुसलमान शरीयत मुस्तफा पर भी बहस आज चौराहों पर करता हुआ नजर आता है, चाय की दुकानों पर बैठकर करता हुआ नजर आता है। चाय की दुकान पर अगर चंद मुसलमान बैठे हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की तरफ मुखातब होकर कहता है, ए मेरे भाई ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, उन्हें चंद मुसलमानों में अगर कोई ऐसा मुसलमान हो ना जो अपने आप में पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्त व इनाद रखता हो, अपने मदरसों के उलमा की इज्जत ना करता हो, अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत ना करता हो, आपने महसूस किया होगा उसके चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है, उसके चेहरे का नक्शा बदल जाता है। मगर ए मुसलमानों, अगर उसी महफिल में ऐसा मुसलमान बैठा है जो पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालना फख्र महसूस करता है, नबी की शरीयत पर जिंदगी बसर करता है, हकीकत में अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत करता है, अपने मदरसों के उलमा की इज्जत करता है, तो पुकार कर कहता है, सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस इल्तिफातगंज अम्बेडकर नगर की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूं और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं बरेनूर पर औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म सैयद कलीम अशरफ साहब किबला की आमद हो चुकी है। आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। आपके इलाके के है ना, हमेशा चिराग तले अंधेरा होता है ना। हाँ, कितना भी बड़ा अल्लामा बन जाए, गांव में मौली साहब ही रहता है ना। तो हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, आओ मुसलमानों में आपको बताता चलो। अगर यहीं पर मैं गुफ्तगू खत्म करके ना किसी और मौजू पर चला जाऊंगा तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कहेगा कि निसार अहमद निज़ामी अमरडोबा की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश ना किया था। मुसलमानों, आओ इसी पर एक ऐसी हदीस रखता चलो जिससे आप अगर इस हदीस को अपने जहन में नक्श कर लेंगे ना तो आप भी लोगों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। हदीस रसूल सुने मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज़ गुज़ार होते ही, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ए मेरे आका, आज आपकी उम्मत आपके ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूद व सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद व सलाम पढ़ेगी? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनते हैं या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे कि वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना कहते हैं, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफू, मैं अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूद व सलाम को सुनता भी हो और उन्हें पहचानता भी हो, चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अफगानिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हो और उसे पहचानता भी हो। और आगे सिर्फ मेरे ज़ाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद व सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाज़रा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है, तो बुखार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले को का, दूर नजदीक के सुनने वाले को का, काने बोले करामत पे लाखों सलाम, और काशिम महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबुल हिंद निसार अहमद निज़ामी साहब किबला, सैयद कलीम अशरफ साहब किबला। हाय हाय भैया, आप लोगों को इनविटेशन अलग से देना पड़ेगा यार, आ जाओ, है ना।
मौलाना लोग कहते हैं तो इनकी समझ में नहीं आता हकीकत में। हाँ, लेकिन अगर कोई झोला छाप छोटा सा कोई एमएलए आ जाए ना, हमारी कौम के लोग उसकी चमचागिरी में पूरी इज्जतें नीलाम कर देते हैं, है ना। वो उठेगा तो खड़े होंगे, वो बैठेगा तो बैठेंगे। और आपने महसूस किया होगा इसी इल्तिफातगंज की जमीन पर आपके मस्जिद के इमाम जब किसी काम के लिए जाते हैं ना, मार्केट में कुर्सी पर लोग बैठे रहते हैं तो उठकर नहीं देते, हजरत जी बैठ जाइए, उनके लिए कुर्सी नहीं दी जाती है। लेकिन कोई छोटभैया नेता पहुंच जाए ना, नेताजी कभी पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं उसको भी खबर नहीं। एक चाय पर अपनी इज्जतों को नीलाम करने वाले, एक चाय पर अपने वकार को बेचने वालों, अगर यही जिंदगी यही मामला तुम पेश करोगे ना तो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा। हकीकत में जो नेताओं की चमचागिरी करता है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बर्बाद करता है। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दिया है तो तू किसी का चमचा बनकर नहीं, बल्कि अपनी क़यादत को मजबूत करते हुए सियासत में अपनी पहचान बढ़ाने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हो, जब किसी का चमचा ना बनकर तुम नबी आखिरुज़्ज़मा का गुलाम बनकर दुनिया में जिंदगी बसर करोगे तो अल्लाह तुम पर रहमत और बरकत की बरसात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, 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 या अली, या अली। क्योंकि इतना थका हूं ना, सोया नहीं ना। हाँ, सफर थोड़ा बढ़ा दीजिए। और अभी जानते हैं, अभी मेरी सोने की उम्र अभी 28 साल का है यार, नौजवान तो ज्यादा सोता है ना जी। हाँ, हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, आओ मैं आपको पैगाम और मैं से देता हुआ चलो मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी उठाते हुए चलो। ए मुसलमानों, कुछ लोग आपकी कलाई को पकड़ कर कह सकते हैं कि ये बता तू नबी पर दुरूद पढ़ने की बात क्यों करता है, नबी पर सलाम करने की बात क्यों करता है। हकीकत में मुसलमानों, हम इस बुनियाद पर नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने की बात करते हैं कि अभी जो कल रात आप जग कर अल्लाह की इबादत किए हैं ना, जिसे शबे बरात कहा जाता है, वो शबे बरात भी मिली है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। अल्लाह ने जान अता किया है तो नबी का सदका है। हमारे जिस्म में जो सांस चल रही है ये नबी का सदका है। हकीकत में मुसलमानों, अल्लाह ने रब्बे कायनात ने अपने महबूब के सदके में हमें नमाज अता किया है, हमें रोजा अता किया है, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। रब्बे कायनात ने इस दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक दूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मतवाज़ पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फहुज़मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बचते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है। अब इत्तेफाकगंज के मुसलमानों, अपने मुकद्दर पर जितना नाज करो उतना कम है, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों पर एहसान करते हुए हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है। हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद रहा होता
होता तो मैं ज़मीन और ज़मा को पैदा न करता, मैं मकीन और मका को पैदा न करता, मैं लौह कलम को पैदा न करता, मैं चाँद और सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात और जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानात और मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बु बिका, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रब्बूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग थक गए हैं ना? हाँ, हजरत बता रहे थे कि आप लोग पूरी रात जगे हैं। यार एक रात जग कर आप थक जाते हैं, पूरा साल जगते हैं और जगने के साथ साथ पढ़ाते भी हैं, है ना? सिर्फ मुकर्रिर नहीं मुदर्रिस भी हैं, ठीक है? हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, हाँ हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है। आओ मैं आपको बताता चलो, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी की तारीख उठाते हुए चलो। नबी आखिरी समा का सदका है कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, अल्लाह ने मकीन और मका को पैदा किया, मगर ये मुसलमानों नबी आखिरी समा के सदके में अल्लाह ने हम और आपको पैदा किया। उसी नबी का पैगाम है कि हम मुसलमानों को अपनी मस्जिदों को आबाद करना चाहिए, हम मुसलमानों को अल्लाह के घर में पहुंचकर रब की इबादत करना चाहिए, हम मुसलमानों को कुरान की तिलावत करना चाहिए। हकीकत में मुसलमानों आज कौम मुस्लिम का जहां भी इलाका है और मस्जिदों का जायजा ले लो, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद मामूली पाओगे। हकीकत में 1000 मुसलमान पर 5 लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर जाते हैं। और जानते हो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ना, जो सबसे बड़े बेनमाजी होते हैं, चाय की दुकानों पर बैठकर कहते हैं यार वापी मस्जिद पर हमला किया जा रहा है, मथुरा मस्जिद पर हमला किया जा रहा है, बाबरी मस्जिद को हमसे ले लिया गया है। सुन मुसलमान, बाबरी और ज्ञानवापी पर अपने आप में सवाल करने वालों, तुम पहले अपने गांव मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद करो, गांव मोहल्ले की मस्जिदों में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करो, तौबे के साथ पैदा हो। जब तुम अपनी मस्जिदों को आबाद करोगे तो रब तबारक व तआला तुम्हारे सजदों के सदके में पूरी दुनिया की मस्जिदों की हिफाजत करता हुआ की मस्जिद आबाद कर ही नहीं पाते हो। फला मस्जिद हमसे छीनी जा रही है, फला मस्जिद का वकार मजरू किया जा रहा है। सुन मुसलमान, मस्जिद हकीकत में जहां बन जाती है वो अल्लाह का घर क़यामत तक है, मगर अगर यही हाल रहा ना तो हर मस्जिदों पर कब्जा हो जाएगा, तुम सिर्फ चाय की दुकानों पर चाय लेकर फिरते हुए नजर आओगे। हकीकत में मुसलमानों अपनी जिंदगी के अंदर सबसे पहले रब कायनात ने तुम्हें इबादत का पैगाम दिया है, तो उस इबादत की तरफ लौट कर आओ। अल्लाह की इबादत करोगे तब रब कायनात तुम्हारे घर में रहमत अता करेगा, तब तुम्हारे घर में बरकत अता करेगा। इसी समाज के अंदर बहुत से लोग हैं, जानते हो आए दिन खून आता है, कहते हैं कारी साहब आप दुआ कीजिए, मेरा बेटा मेरे हाथ के नीचे नहीं रह चुका है, मेरा बेटा मुझसे अपने आप में बहुत ज्यादा झगड़ा करता है। जब सुनो मुसलमानों कि तुम्हारा बेटा जो बिगड़ा है ना, इसमें सबसे ज्यादा अगर कसूरवार कोई है तो तुम ही हो, इसलिए कि ना तुम कभी मस्जिद की तरफ जाते हो, ना तुम कभी अपने बच्चों को मस्जिद की तरफ लेकर जाते हो। जब तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारा बच्चा भी नमाज पढ़ेगा, जब तुम कुरान पढ़ोगे तो तुम्हारा बेटा भी कुरान पढ़ेगा। जब नमाज और कुरान की तिलावतों को साथ साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारे बेटे के दिल में कितनी भी गंदगी होगी ना, तो रब कायनात कुरान की तिलावतों के सदके तुम्हारे बेटे के दिल से गंदगी को साफ करके उस बेटे के दिल में तुम्हारी मोहब्बत आता। लेकिन हालात का जायजा लो, आज समाज के दुश्मनों ने समाज का कितना नुकसान किया है। हम और आप नबी के आखिरी ज़मां की बात करते हैं, कहते हैं पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि अल्लाह ने जिंदगी दिया, मगर मुसलमानों अफसोस करो आज उसी नबी के नाम पर मिलाद का प्रोग्राम रखा गया। इसी इल्तिफातगंज के मुसलमान चंद मिनट के लिए बैठने के लिए तैयार नहीं है, चंद घंटों के लिए बैठने के लिए तैयार नहीं है। और जानते हो वो अपने अपने बिस्तरों पर जाकर आराम कर रहे होंगे, कल आएंगे तो कहेंगे यार
निसार अहमद निजामी इस तरह गुफ्तगू कर रहा था। आप पूछेंगे क्या महफिल में गए थे? नहीं, महफिल में नहीं गया था, सो कर सुन रहा था। और हकीकत में जो लोग सो कर गुफ्तगू सुनते हैं ना, जब कभी नाच और गाने का प्रोग्राम इलाके में देखना, तो सबसे पहले जो सोकर गुफ्तगू सुन रहा था वही सबसे पहली सब में खड़ा होता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से हालात कौम मुस्लिम ने पैदा कर दिया है। हकीकत में मुसलमानों की आज कौम मुस्लिम के बकार इस तरीके से मजरूह होते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने शरीयत मुस्तफा के खिलाफ हर काम को अंजाम देना शुरू कर दिया है। याद रखो, अगर यही तरीका, यही नजरिया पेश करोगे तो दिन दूर नहीं है कि रब्बे कायनात तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर आबाद होना चाहिए हो मुसलमानों, नबी आखिर ज़मां की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालो, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत का चिराग दिल में रोशन करने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हो, जो मुसलमान नबी आखिर ज़मां की अजमत को सीने में बसाकर मोहब्बत रसूल का चिराग सीने में रोशन करके चलता है, रब तबारक व तआला उस मुसलमान पर रहमत और बरकत की बरसात आता है। बेशक मैं आपको बताऊं, इन्हीं नौजवानों में कुछ ऐसे भी नौजवान हैं ना, हकीकत में यहाँ जितने भी सुनने के लिए आए हैं, इन सुनने वालों में आधा से ज्यादा नौजवान बनता है ना? हाँ, इसलिए कि नौजवानों की जिंदगी उठाकर देखो। आज नौजवान जानते हो क्या करता है? सबसे बड़ा गुनाह जो नौजवान कर रहा है, वो सबसे बड़ा गुनाह ये है कि बाप की कॉलर पर हाथ डालकर कहता है, अब्बा तूने जिंदगी में मेरे लिए किया ही क्या है? सुन मुसलमान, बाप की कॉलर पर हाथ डालकर अपने आप में ये सवाल करने से पहले अपने आप में मौला की बारगाह में दुआ किया कर कि रब्बे कायनात, ये हाथ बाप की कॉलर से जाने से पहले मैं अपाहिज हो जाता तो बेहतर था। अपनी जबान से बाप को गाली देने से पहले मैं गुमनाह हो जाता तो बेहतर था। इसलिए मुसलमानों की बाप के कॉलर पर हाथ डालने वाला जिंदगी में कभी सुकून हासिल नहीं कर सकता है, जिंदगी के अंदर कभी चैन नहीं आ सकता है। आपने महसूस किया होगा कि बाप की कॉलर पर हाथ डालकर नौजवान बेटा पूछता है, अब्बा तूने जिंदगी में दिया ही क्या है? सुन मुसलमान, अगर तेरे बाप का नाम तेरे साथ ना जुड़ा होता ना, तो आज यही दुनिया, यही इल्तिफातगंज वाले तुझे हरामी कह के पुकारते, तुझे नाजायज कह के पुकारते। हकीकत में आज तुझे जायज कह के पुकारा जा रहा है, तो तेरे बाप की वजह से पुकारा जा रहा है, तेरे बाप के नाम की वजह से तुझे पुकारा जा रहा है। अगर चंद पैसों का तुझे गुरूर आ गया, चंद रुपए का तुझे घमंड आ गया है, तूने थोड़ी सी दौलत कमाकर अगर ये समझ लिया है कि मुझसे बड़ा इत्तेफाकगंज में कोई अमीर, कोई सेठिया नहीं है, तो सुन, तेरी जो दौलत आई है ना, तेरे बाप की दुआओं की बदौलत अल्लाह ने अता किया है, तेरे माँ की दुआओं की बदौलत अल्लाह ने अता किया है। तो कितना भी बड़ा अमीर हो जा, कितना भी बड़ा अधिकारी हो जा, कितना भी बड़ा IPS IAS बन जा, मगर माँ बाप के सामने हमेशा बेटा बनकर आया कर। बाप बनने की कोशिश ना किया कर, बाप की अजमत को पामाल करने की कोशिश ना किया कर। आज इसी समाज के अंदर देखा गया है कि बाप की अजमत को किस तरीके से पामाल किया जाता है, बाप की अजमत को इस तरीके से नीलाम किया जाता है। हकीकत में मुसलमानों, उस बाप से तुम सवाल करते हो जिस बाप ने तुझे जिंदगी का चैन सुकून देने के लिए हकीकत में मुसलमानों अपनी जिंदगी की तमाम ख्वाहिशात की कुर्बानी दी है। एक बाप ही होता है जो इत्तेफाकगंज की जमीन से मुसलमानों सफर करके कभी सऊदिया, कभी दुबई, कभी कहां जाकर हकीकत में मुसलमानों अपने आप में कमाने की कोशिश करता है। क्या बाप का दिल नहीं कहता है कि इत्तेफाकगंज की जमीन पर मैं भी गुजारूं जिंदगी? हकीकत में कहता है, मगर सोचता है कि बाहर रहूंगा तो बेटे को सुकून की जिंदगी दे सकूंगा, बेटा चलो सुकून की जिंदगी बसर कर सकेगा। एक बाप ही होता है जो अपने बेटे के लिए अपने गांव से हिजरत करके एक मुसलमानों अलग अलग शहरों, अलग अलग कंट्रियों में जाकर हकीकत में आपके लिए अपनी मेहनत और मजदूरी करता है। एक मुसलमानों एक बाप ही होता है जिसको आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जब किसी का मकान बनता है तो आप चंद ईंटों को लेकर 10 कदम नहीं चल सकते हो, लेकिन एक बेटे का बाप ही होता है जो अपने सर पर 8 ईंटों को उठाकर हकीकत में 2 मंजिला 3 मंजिला पर चढ़ जाता है। जानते हो कि मुसलमानों, इसलिए कि वो सोचता है जितनी मेहनत करूंगा, जितनी मजदूरी करूंगा, रब्बे कायनात इस मेहनत का अज्र मुझे अता करेगा, मेरे बेटे को सुकून की जिंदगी अता करेगा। आओ मैं आपको बताता चलूं हालात कितने बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। हकीकत में मुसलमानों, आज बाप की कॉलर पर हाथ डालकर बाप से सवाल करने वालों, बाप की जिंदगी को देख लिया करो। तुम जिस दोस्त पर बहुत इतराते हो ना, जिस दोस्त के अपने आप में आने पर, उसके कॉल पर बात करने पर कहते हो चलो फैजाबाद टहल कर आया जाए, और चलो कांडा टहल कर आया जाए, और बाप बेचारा बिस्तरे अदालत पर लेट कर बिस्तर से सोचता है कि काश मेरा बेटा चंद मिनट रुक जाता तो
में बाप अपने बेटे से थोड़ी देर गुफ्तगू कर देता, ये बेटा 10 चक्कर आएगा जाएगा, कभी नहीं पूछेगा अब्बा जी खाना खाए कि नहीं, कभी नहीं पूछेगा अब्बा जी पानी पिए कि नहीं, कभी नहीं पूछेगा अब्बा आपकी दवा का इंतजाम हुआ कि नहीं। 10 चक्कर आ रहा है जा रहा है, बाप से कोई सवाल नहीं है, बाप से कोई मामला नहीं है। और किसी दोस्त ने फोन कर दिया फला जगह जाना है, तो इनके पास वक्त भी रहता है, इनके पास फुर्सत भी रहती है। हकीकत में मुसलमानों, बाप जो बिस्तर अलालत पर लेटा होता है, वो अपने बेटे से दौलत की ख्वाहिश और तमन्ना नहीं जाहिर करता है। वो ये नहीं सोचता है कि बेटा दौलत लाकर मेरे कदमों में सजाए। वो बाप जो बिस्तर अलालत पर लेटा रहता है, उसकी तमन्ना आरज़ू जगी होती है कि काश मौला मेरा बेटा 24 घंटा इधर उधर रहता है, उन 24 घंटों में से अगर 10 मिनट निकाल कर मेरे साथ चंद मिनट की गुफ्तगू कर लेता तो मेरे दिल को करार मिल जाता, मेरे दिल को सुकून मिल जाता। मुसलमानों, अपने माँ बाप को तकलीफ ना दिया करो, अपने माँ बाप के जज्बात के साथ खिलवाड़ ना किया करो। माँ बाप जैसी दौलत हर किसी के हिस्से में नहीं आती है। उस यतीम गरीब लड़के से पूछना कभी, उस यतीम बेटे से कभी पूछना कि ये बता जिंदगी में तुझे सुकून मिलता है कि नहीं। कहता कहेगा ना बाप होता तो सुकून मिलता, बाप होता तो चैन मिलता। जिनके माँ बाप नहीं है ना, उस बेटे से कभी अकेले में मिल लेना, हकीकत में आंख में आंसू की कतरात जारी हो जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, बाप कितना भी गरीब हो, जब बेटे के ऊपर वो बाप का साया होता है तो दुनिया उस बेटे की इज्जत करती हुई नजर आती है, उस बेटे के वकार को पहचानती हुई नजर आती है। और जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, दुनिया उसे लावारिस समझकर उसकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया करती है। इसीलिए जब भी हाथों को उठाया करो तो रब की बारगाह में सजदा में जाने के बाद जब हाथों को उठाओ तो जहां अपने लिए दुआएं करते हो, वही मौला की बारगाह में हाथों को उठा कर ये दुआ किया करो कि रब्बे कायनात मेरे माँ बाप की उम्र में बरकत अता कर दे। दावे के साथ लेता हो, अगर तुमने वालिदैन के लिए दुआ किया तो रब्बे कायनात उस दुआ को कबूल फरमाकर तुम्हारी भी उम्र में बरकत अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, है ना। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि मुसलमानों अपने माँ बाप की कदर कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो। जानते हो, मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आज तुम अपने बाप की कॉलर पर हाथ डालकर पूछते हो ना अब्बा तूने जिंदगी में क्या किया। अभी मैं बहुत दिन की बात नहीं बता रहा हूँ, इसी जनवरी महीने की बात बता रहा हूँ। हकीकत में शहर मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर पड़ता है। मैं वहाँ तकरीर करने के लिए गया था ना, 17 तारीख थी। मैंने अपनी निगाहों से देखा था मुजफ्फरपुर। जब हमने तकरीर करके मैं सोचा कि जाऊं स्टेशन की तरफ जाऊं, तो जानते हो स्टेशन की तरफ जब जाने लगा ना तो ए मुसलमानों, वहां पर मैंने एक रिक्शे को हाथ दिया। जानते हो कितना टाइम हो रहा था? 2:15 का टाइम हो रहा था। रिक्शे वाले को मैं हाथ देकर बुलाता हूँ। बुलाने के बाद वो रिक्शा वाला जो साइकिल से रिक्शा चला रहा था, उसके रिक्शे पर जाकर मैं बैठा। बैठने के बाद अपने आप में वो चलाना शुरू किया। जैसे ही ब्रिज आई है, वो अपने आप में इतना कमजोर था, इतना लागर था कि ब्रिज पर मुझे लेकर चढ़ नहीं सकता था। मैं उतर कर उसके रिक्शे को धक्का दिया। देने के बाद जब चढ़ा ना तो ब्रिज के ऊपर मैंने उस बाप की कलाई को पकड़ कर पूछा था, दादा इस रात की ठंडक में, इस रात की तारीकी में, इस रात के इस मौसम में, इस ठंडक के माहौल में, जहां आज नौजवान भी बिस्तर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, जहां नौजवान अपने बिस्तर से निकल कर कहीं एक कदम चलने के लिए तैयार नहीं है, इस रात की तारीकी में, इस ठंडक के मौसम में 2:15 बजे रात को आप इस मुजफ्फरपुर शहर के अंदर किस तरीके से आप रिक्शा चला रहे हो। तो जानते हो मुसलमानों, उस बाप से एक सवाल और किया था कि दादाजी आप ये बताइए आपकी उम्र कितनी होगी। तो जानते हो उस बाप ने मुस्कुरा कर कहा था, मौलाना साहब आपको पता नहीं है, मेरी उम्र इस वक्त 72 साल है। मैं अपने आप में तड़प गया कि 72 साल का बूढ़ा इस रात के ठंडक के मौसम में अपने आप में मुजफ्फरपुर की गलियों में रिक्शा चला रहा है। आखिर माजरा क्या है, वजह क्या है? मैंने पूछा था कि दादा इस उम्र में आपको तो अपने आप में अपने घर पर रहना चाहिए था, बिस्तर में आराम करना चाहिए था, क्योंकि मेरे भी दादा हैं। मेरे दादा कभी बाहर ठंडक के मौसम में नहीं निकलते हैं, लेकिन आप इस उम्र के होने के बावजूद आप अपने आप में इस ठंडक के मौसम में आप इस तरीके से जिंदगी को गुजार रहे हैं। तो उस बाप की आंख में झांक कर देखा था, आंखों में आंसू के कतरात थे। उस बाप ने कहा था, मौलाना जी आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है, मेरा बेटा अपने आप में ITI की तैयारी कर रहा है। अपने बेटे की फीस के लिए, अपने बेटे के एडमिशन
ایڈمیشن کے لیے مجھے رات اور دن کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اے مسلمانوں، ایک باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کی ترقی کے لیے دن رات کو اپنے آپ میں لگا دیتا ہے۔ جانتے ہو کس بنیاد پر؟ اس کی سوچ فکر یہ ہوتی ہے کہ مولا اگرچہ میں پریشانی کاٹ لوں لیکن میرے بیٹے کو سکون کی زندگی دینا، میرے بیٹے کو چین کی زندگی دینا۔ وہی بیٹا جب کامیاب ہوتا ہے نا تو باپ کو دھکا مار کر کہتا ہے ابا تم نے مجھے زندگی میں کچھ نہیں دیا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں ایک چیز اور بھی نوٹ کرتے ہوئے چلنا، جس باپ کو تم دھکا دیتے ہو نا جوانی کے تیش میں آ کر، تو آنے والی جو نسل تمہاری ہوگی وہ بھی تمہیں دھکا دے گی، وہ بھی تمہیں اسی طریقے سے تڑپائے گی۔ کسی باپ کو اپنے آپ میں تڑپانے سے پہلے، کسی باپ کی کالر پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنی زندگی کا بھی سرچ کرنے کی کوشش کیا کرو۔ میں نے خود اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے، اس لیے کہ اس وقت تقریباً میری عمر 28 سال ہے، میں نے اپنے 12 سالہ عمر کے اندر اپنے محلے کے اندر دیکھا تھا ایک باپ کو، جانتے ہو اس کے 2 بیٹے، اپنے آپ میں اس کا باپ اپنے آپ میں پیر سے اپاہج تھا، اس کے دونوں بیٹے اسے گھسیٹ گھسیٹ کر سڑک پر مارا کرتے تھے۔ آج 18 سال کے بعد میں نے دیکھا، لگ بھگ 18-19 سال کے اندر میں نے دیکھا کہ اس باپ کا جب انتقال ہوا، ان کی عمر جب 50 سے اوپر ہوئی، ان کے بچے جب نوجوان ہوئے، تو آج ان لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، کبھی آنا تو دکھاؤں گا امرڈوبا کے اندر، انہی دونوں کے بچے آج اسے گھسیٹ گھسیٹ کر کبھی چوراہوں پر مارتے ہیں، کبھی سڑکوں پر مارتے ہیں۔ یعنی جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا ہی بھرنا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ کی عزت کر لو۔ ماں باپ کی جو قدر و عزت کرتا ہے اللہ و رسول اس کی عزت کرتے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں، جو ماں باپ کو راضی کرتا ہے اللہ و رسول اس کو راضی کرتا ہے، کرتے ہیں۔ حقیقت میں اگر یہی طریقہ، یہی انداز تم نے پیش کر دیا تو انشاءاللہ رب العزت ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج سماج کے اندر دیکھا جاتا ہے، اسی التفات گنج کی زمین پر ابھی کوئی جبہ صافہ میں بہت بڑے پیر صاحب آ جائے نا تو پیر کی آمد پر ہماری قوم پلکیں بچھا دیا کرتی ہے۔ ہماری قوم کے لوگ کوئی ایک مسلمانوں نعرہ لگاتا ہے، کوئی نعرہ رسالت کی صداؤں کو بلند کرتا ہے، کوئی پیر دباتا ہے، کوئی ہاتھ دباتا ہے، کوئی سر دباتا ہے۔ ان نوجوانوں سے پوچھا جاتا ہے نوجوان پیر کی خدمت کیوں کر رہا ہے؟ تو جانتے ہو یہ نوجوان کہتے ہیں مولانا جی آپ کو خبر نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، پیر کی خدمت کروں گا تو اللہ جنت دے گا۔ مسلمانوں، جہاں علماء کی ٹیم موجود ہے، آپ کے اسی علاقے کے التفات گنج کی ایک بہت معزز اور معطر شخصیت جو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یونیورسٹی کے اندر دین اسلام کی خدمت کو انجام دیتی ہے، جنہیں محقق علم و فن حضرت علامہ مفتی نصیب احمد مصباحی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان سے بھی پوچھنا کہ کیا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ پیر کی خدمت پر اللہ جنت دیتا ہے؟ حقیقت میں مسلمانوں، میں آپ کو میسج دینا چاہیتا ہوں، اس سماج کے اندر جو آج ہمارے یہاں پیروں کی ٹولی آتی ہے نا، ان پیروں کے بارے میں خبر کی نہیں ہے کہ پیر اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ حقیقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے مسلمانوں، ڈھونگی پیروں کی بھمار لگی ہوئی ہے، کوئی لگڑ شاہ پیر صاحب بن کر چلا آ رہا ہے، کوئی بگڑ شاہ پیر صاحب بن کر چلا آ رہا ہے، کوئی ادھر ادھر سے پیر صاحب بن کر چلا آ رہا ہے، 10 انگوٹھیاں اپنے انگلیوں میں ڈالے ہوئے، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے، ان کے مریدین ان کی کرامتوں کو بیان کرتے ہوئے۔ حقیقت میں مسلمانوں کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب ہوا میں اڑ رہے تھے، ہمارے پیر صاحب فلاں کام کو انجام دے رہے تھے، پیر صاحب التفات گنج میں تھے لیکن یہ مدینہ الرسول کے اندر نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ اے مسلمانوں، ایسے پیروں سے بچنے کی کوشش کرو، اسی پیر کے دامن سے وابستہ ہوا کرو جو پیر تمہیں کہتا ہو کہ مسلمان مجھے بعد میں مان، پہلے ماں باپ کو ماننے کی کوشش کر۔ وہ پیر کی تنقید کیا کرو جو پیر تمہیں نماز کی پابندی کا درس دیتا ہو، قرآن کی تلاوت کا درس دیتا ہو، اپنے آپ میں بھائیوں میں اتفاق کا درس دیتا ہو۔ قطعی اس پیر کی کبھی عزت نہ کیا کرو جو دو بھائیوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ یاد رکھو مسلمانوں، جن پیروں کی تم خدمت کر کے جنت بٹورنے کی خواہش و تمنا کرتے ہو نا، وہ دن آتا ہے کہ پیر صاحب تمہیں لوٹ کر چلے جاتے، تم کنگار ہو جاتے ہو، اور جن ماں باپ کو تم اپنے آپ میں پورا بھلا سمجھتے ہو نا، ان ماں باپ کی کبھی عزت نہیں کرتے، کبھی ماں باپ کی قدر نہیں کرتے۔ اگر جنت چاہیے تو پیر کے قدم کو بعد میں دبا، سیدھے ماں باپ کے پاس پہنچ، ماں باپ کے قدم کو دبانا شروع کر دے، ماں باپ کو راضی کرنا شروع کر دے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہو جو اپنے ماں باپ کو راضی کرتا ہے رب تبارک
व तआला उसे जन्नत में आला मकाम। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, इसी समाज और माशरे के अंदर देखा गया है कि आज समाज के अंदर किस तरीके से आज माहौल को किस तरीके से खराब किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता चलूं, बस 2-4 मिनट और सुन सकते हैं ना? हाँ 2-4 मिनट और सुन सकते हैं। हाँ, अभी शोएब रजा अजहरी का, हाँ बस 2-4 मिनट, हाँ सुनेंगे और आधी घंटा नहीं अभी इनकी नात भी होनी है ना। हाँ क्या बात। आधे घंटा में जी हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है मुसलमानों, मैं पीर का मुखालिफ नहीं हूँ, हकीकत में मैं भी एक पीर का मुरीद हूँ, मैं भी एक मुसलमानों बहुत से पीरों का खलीफा हूँ, मगर पीर ऐसा होना चाहिए जो नमाजों की पाबंदी का दर्स देता हो, कुरान का दर्स देता हो, ए मुसलमानों शरीयत इस्लामिया के अहकाम पर अमल करता हो। हकीकत में मैं इसी इल्तफातगंज की बगल में जानते हो सैयद करीम अशरफ साहब किबला के वालिद मोहतरम की जिंदगी को देखा था कि हकीकत में मुसलमानों अलालत के वक्त भी नमाजों की पाबंदी करते हुए नजर आते थे, अलालत के वक्त भी वो अपने आप में अल्लाह की इस तरीके से इबादत करते थे। ऐसा पता चलता था कि पीर को देखना तो ऐसे लोगों की इज्जत किया करो, ऐसे लोगों के दामन से वाबस्ता हुआ करो, नमाज की इस तरीके से अदायगी हुआ करती थी। और भाइयों में ऐसा इत्तेफाक तो आज तक मैं कहीं नहीं देखा, इतना इत्तेफाक था कि एक बड़ा भाई छोटे भाई को लेकर ही खाना खाया करता था। इतनी मोहब्बत कहाँ मिलती है लोगों मुसलमानों? अपने आप में मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहिए था। वो आओ मैं आपको बताता चलो, इसलिए कि वक्त की किल्लत है और इधर स्टेज से इशारा भी हो गया है कि अब खत्म किया जाए, तो मैं 2-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आओ मैं आपको बताता चलूं, आपको मैसेज देता हुआ चलो। हकीकत में मुसलमानों जिंदगी के अंदर माँ बाप की कदर किया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो। ये जो शब बारात का महीना चल रहा है ना, इस महीने के बारे में नबी ने इरशाद फरमाया है मेरा महीना है। हकीकत में मुसलमानों नबी ने शाबान के महीने को अपना महीना कहा है और नबी आखिरुल ज़मा रमजानुल मुबारक के बाद अगर किसी महीने में सबसे ज्यादा रोजा रखते थे तो वो मुसलमानों शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना था। इसलिए शाबान का एहतराम करना हम और आपको जरूरी है, हम और आप पर लाजिम है कि हम शाबानुल मुअज़्ज़म का एहतराम करें। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, इसी महीने की जो कल तारीख गुजरी है, आपने घर में न्याज़ो फातिहा भी दिलाई होगी। अगर पूछ लिया जाए मुसलमान किनके नाम पे न्याज़ो फातिहा दिलाया है, तो अक्सर बेशतर लोगों की ज़बानें खामोश हो जाएगी, क्योंकि आपको इसके बारे में कहाँ पता चलता है किसके नाम से फातिहा हो रही है। ऐ मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस साथ को हजरत उवैस करनी कहा जाता है। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये मकाम और मर्तबा अल्लाह ने क्यों अता किया? अपनी बूढ़े माँ की खिदमत की बुनियाद पर अता किया कि आज पूरी दुनिया उवैस करनी की बारगाह में नजराने अकीदत को पेश कर रही है। उवैस करनी के मकाम को अल्लाह ने इतना बुलंद बाला किया है। ए मुसलमानों, एक दिन की बात है, नबी आखिर ज़माने के इरशाद फरमाया, ए उमर, ए अली, जब तुम्हारी कभी मुलाकात ना उवैस करनी से हो तो मेरी गुनहगार उम्मत के लिए तुम मग़फ़िरत की दुआ कराना। तो जानते हो हजरत उमर ने, हजरत अली ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर उम्मत के लिए कौन दुआ कर सकता है? आप ही आपसे बेहतर कोई दुआ इस उम्मत के लिए नहीं कर सकता है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, उमर, अली, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, उवैस करनी अपने माँ की ऐसी खिदमत करता है, ऐसी खिदमत करता है कि अगर उवैस करनी ने अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाकर अपने माँ का वसीला बनाकर दुआ कर दिया तो रब तबारक व तआला मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमाकर उन पर रहमत नूर की बारिश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और मैं एक बात और बोलते हुए चलूं, क्योंकि मालूम फिर कभी तफात बन जाऊंगा, है ना। वो बात ये है कि आज समाज के अंदर जानते हो हमारी घर की बेटियां बहनें भी बड़ी तेजी से अपने आप में मुर्तद हो रही है, अपने आप में बड़ी तेजी से गैरों के चंगुल में फंसकर अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही है। तो मुसलमानों, अपनी बच्चियों की इज्जत के खातिर, अपनी बच्चियों के वकार के खातिर, अपनी बच्चियों के हकीकत मुस्तकबिल को देखते हुए उन्हें हमेशा पर्दे का एहतमाम करने की तलकीन दिया करो। बच्चियों को बताया करो कि कुरान की तिलावत से अपनी जिंदगी का आगाज किया करें। बच्चियों को बताया करो कि जब
जब सोने के लिए जाएं तो ए मुसलमान उनके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, उनके हाथ में कोई ऐसी दीनी किताबें होनी चाहिए जिससे उनके दिल में नबी आखिर ज़मां सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा की मोहब्बत पैदा हो। लेकिन हालात का जायजा लो मुसलमानों, हमारी समाज की बेटियां जिन्हें कुरान पढ़ना था, जिन्हें नमाज पढ़ना था, आज बाकायदा जानते हो क्या कर रही हैं, सोशल मीडिया पर रील बनाकर वीडियो अपलोड करती है और उसका बाप कहता है कि मेरी बेटी को फॉलो करना, उसका भाई कहता है मेरी बेटी को फॉलो करना। इस तरीके से हालात हमारे समाज के अंदर देखे गए हैं। इस तरीके से ए मुसलमानों माशरे के अंदर बुराई बड़ी तेजी से फैल रही है। हमारी घर की बेटियां जिनका नाम आयशा रखा गया है, जिनका नाम फातिमा रखा गया है, जिनका नाम सलमा और सायरा रखा गया है, वो बेटियां जो इस्लाम से ताल्लुक रख रही है वो अपने जिस्मों की नुमाइश सोशल मीडिया पर कर रही है। हकीकत में अगर किसी बाप से कहा जाता है तुम्हारी बेटी सोशल मीडिया पर अपने वीडियो को अपलोड करती है, आप क्यों नहीं बोलते हो, तो जानते हो बाप कहता है कि मेरी बेटी ऐसा वैसा गलत काम नहीं उठाती है। लेकिन मुसलमानों हालात का जायजा लो, आए दिन वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहे हैं कि हमारी कौम की बेटियां बड़ी तेजी से गैरों से शादी रचाकर अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही है। वो वाकया भी मैं आपको बताना चाहता हूं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वाकया है। एक बेटी ने अपने आप में थाना के कैंपस में जाकर अपनी शादी को रचाया था। हकीकत में मुसलमानों 200-250 लोगों के मजमे में उसका बाप जो चौकीदारी की जिंदगी चौकीदारी कर रहा था, जब बेटी की शादी को देखा ना, बाप अपने आप में तड़प गया और आने के बाद अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। कहा बेटी ये तेरी जिंदगी इसलिए अल्लाह ने नहीं अता किया है, रब्बे कायनात ने तुझे दिया था कि तू ईमान वाली बनकर दुनिया से रुखसत हो। ए बेटी तू जहां जा रही है तू जहन्नम के ईंधन को लेकर जा रही है। ए बेटी तू अपने आप में अपनी इज्जत को नीलाम करने के लिए जा रही है। बेटी तेरा बाप तुझे पुकार रहा है, बेटी तू घर को चल, तू अपने घर को चलेगी ना तो तेरा बाप तुझे मोहब्बत के साथ दुल्हन बनाकर घर से रुखसत करेगा। हकीकत में मुसलमानों बाप गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, कहता रहा बेटी अगर तू आज इस खाना के अंदर शादी कर लेगी ना तो जो लोग तेरे बाप को सलाम करते थे आज तेरे बाप पर ताना करेंगे। हकीकत में मुसलमानों जिनकी बेटियां बेपर्दा होती है वो बाप कितना भी दौलत वाला हो दुनिया के सामने उसका सर झुका रहता है, मगर जिनकी बेटी पर्दा का एहतमाम करती है ना, कितना भी गरीब बाप हो वो दुनिया के सामने सर उठाकर चलता है। उस बाप ने कहा था बेटी तू अपनी इज्जत को इस तरीके से नीलाम ना कर, तेरा बाप तुझे लेने के लिए आया है, तू अपने घर को चल। हकीकत में मुसलमानों थाना के कैंपस के अंदर वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। उस बेटी ने इसी तरीके से हाथों को कर कर उस बाप को इसी तरीके से धक्का दिया था, ऐसा धक्का दिया था कि अपने आप में वो बाप अपने आप में जमीन पर गिर जाता है। उस बाप के आंखों में आंसू के कतरात थे, वो अपनी इज्जत को लुटता हुआ देख रहा था। हकीकत में मुसलमानों ये हालात हर किसी के सामने है, हर कोई अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत करना सीखे। हकीकत में जब तुम्हारी बेटी कॉलेज का रुख करे ना तो हफ्ते में 15 दिन में जिस तरीके से तुम चाय की दुकानों पर 2 घंटे बैठकर बर्बाद करते हो, एक दिन उन 2 घंटों को बचाकर कभी कभी कॉलेज का चक्कर लगा दिया करो, कभी कभी स्कूलों का चक्कर लगा दिया करो। आखिर तुम्हारी बेटी पढ़ने के लिए जा रही है तो पढ़ रही है कि किसी के साथ खेल रही है, इस पर मुसलमानों कोशिश करो, ये ना कहा करो कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। हकीकत में मुसलमानों कुछ लोग हमारी बेटियों के पीछे लगाए गए हैं, इन बेटियों की इज्जत की हिफाजत भी हम और आपको करना है। और जो बेटियां बड़ी तेजी से मुर्तद हो रही है ना, हकीकत में उन्हीं बेटियों को देखा गया है मुर्तद होते हुए जो कुरान की तालीम से कोसों दूर रहती है, जो नमाजों की पाबंदी नहीं करती है, जो शरीयत मुस्तफा के अहकाम पर अमल नहीं करती है। हकीकत में इसीलिए कहा गया है कि बचपन ही से अपनी बच्चियों को तालीम मुस्तफा पढ़ाने की कोशिश किया करो, अपनी बेटियों को बताने की कोशिश किया करो कि सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा की बेटियों ने करबला के मैदान में किस तरीके से पर्दे का एहतमाम किया था। जब नवाज़े रसूल को शहीद कर दिया गया था, करबला के तमाम लोगों को शहीद कर दिया गया था, खानदान अहले बैत के चश्मो चिरागों को जब शहीद कर दिया गया था तो करबला के मैदान में खेमे हुसैनी को जलाने के बाद ए मुसलमानों हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत सैयदा सकीना खानदान की बेटियों के सरों से दुपट्टे को छीना गया था। उन दुपट्टों को छीन कर हकीकत में ये आवाज लगाई गई थी कि खानदान अहले बैत की बेटियों को कूफा के बाजारों में नंगे से घुमाया जाएगा। तो उस वक्त हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने आप में खानदान की बेटियों की कमान संभालते हुए आवाज लगाई थी, खानदान की बेटियों आज नबी की शरीयत के वकार को
کو اونچا کرنے کا وقت آ چکا ہے، نانا کے دین کی تبلیغ کرنے کا وقت آ چکا ہے، نانا کی امت میں تمام بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کا پیغام دینے کا وقت آ چکا ہے۔ اے میری قوم کی، میری خاندان کی بیٹیوں، اگرچہ ہمارے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا ہے، اگرچہ ہمارے سروں سے دوپٹوں کو چھین لیا گیا ہے، میری خاندان کی بیٹیوں، تم اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر کے دنیا کی تمام بیٹیوں کو پیغام دو کہ تم پر کتنی بھی مصیبت آ جائے مگر بے پردہ کبھی گھر سے باہر نہ نکلنا، نکلنا تو پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلنا، اس لیے کہ جب بچی بیٹی پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلتی ہے تو یہ دنیا اوقات میں رہا کرتی ہے۔ اور حقیقت میں مسلمانوں، جو اپنی بیٹیوں کو یہ میسج یہ پیغام دیتے ہیں، وہ بیٹیاں اپنے باپ کے گھر رہتی ہے تو باپ کے سر کو اونچا کرتی ہے، جب سسرال میں رہتی ہے تو اپنے شوہر کے سر کو اونچا کرتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، پھر کبھی میں آؤں گا، سبحان اللہ، آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے حضرت، ہاں بس میں جو بڑے بڑے جلسوں میں بول دیتا ہوں اسی کو بول دوں، 2-3 منٹ لگے گا، سنیں گے؟ ہاں تو آج دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں اور دعویٰ بھی ہے نا، حضرت علامہ اکرم جلال پوری صاحب قبلہ، سید کلیم اشرف صاحب قبلہ اور ہلال بھائی ہیں، یہ بھی جلسہ میں جانتا ہوں، میں بچپن کا رہا ہوں گا، تب سے پیدا بھی نہیں رہا ہوں، کیونکہ میں 28 کا ہوں، لگ بھگ 30-32 سال سے اس فیلڈ میں ہیں، لیکن کسی خطیب نے اس طریقے سے ترتیب وار اولیاء کے ناموں کو نہیں بنایا ہوگا، میں بنا دوں گا، سنیں گے؟ سنیں گے؟ کتنے لوگ؟ سنیں گے؟ گفتگو کرنے میں کم مزہ رہتا ہے جب وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو آج دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں سب کا اصل مقصد یہی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک، اپنے معبود حقیقی تک پہنچ جائے اور اس کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکے۔ یہی مقصد لے کر راجاؤں نے راج اور بادشاہوں نے اپنے شہنشاہی تخت و تاج کو لات مار کر جنگلوں اور بیابانوں کو اختیار کر لیا اور دیدار الہی کی حسرت میں پروانہ وار پھرتے رہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے۔ یعنی اے پروردگار عالم، تو میرا خالق و مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور میں ہر حال میں تیری رضا پر راضی ہوں، تجھے اختیار ہے کہ تو مجھے جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال، مگر میرے دل کی تمناؤں کا مرکز، میری حسرتوں کا کعبہ مقصود تو صرف اس قدر ہے کہ تو اپنے دیدار پر انوار کا ایک جلوہ دکھا دے۔ اے مسلمانوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں بسنے والا انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ادنا ہو یا اعلیٰ، غلام ہو یا آقا، بوڑھا ہو یا نوجوان، کمزور ہو یا پہلوان، سیاست کا نگہبان ہو یا حکومت کا پاسبان، رعایا ہو یا جاگیردار، مجرم ہو یا تھانے دار، حاکم ہو یا محکوم، خادم ہو یا مخدوم، غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا وزیر، اس دنیا میں بسنے والا انسان ہندوستانی ہو یا پاکستانی، سعودی ہو یا ترکستانی، عراقی ہو یا ایرانی، امریکی ہو یا افغانی، روسی ہو یا چینی، مصری ہو یا جاپانی، اسرائیلی ہو یا فلسطینی، اس دنیا میں بسنے والا انسان عربی ہو یا عجمی، مشرقی ہو یا مغربی، شمالی ہو یا جنوبی، عرشی ہو یا فرشی، اجی مسٹر ہو یا ماسٹر، جج ہو یا کلیکٹر، حافظ ہو یا قاری، عالم ہو یا جاہل، مفتی ہو یا مستفتی، حاجی ہو یا قاضی، مدرس ہو یا مفسر، محرر ہو یا مورخ، خطیب ہو یا مقرر، معلم ہو یا مصنف، اس دنیا میں بسنے والا انسان حنفی ہو یا حنبلی، مالکی ہو یا شافعی، نقشبندی ہو یا سہروردی، چشتی ہو یا قادری، برکاتی ہو یا اشرفی، رضوی ہو یا نظامی۔ اے مسلمانوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یعنی صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم، عثمان غنی ہو یا مولا علی، عمر بن عبدالعزیز ہو یا حسن مجتبی، حسین اعظم ہو یا شہدائے کربلا، امام اعظم ہو یا غوث اعظم، غریب نواز ہو یا بندہ نواز یسوع دراز، امام مسلم و امام بخاری ہو یا سید ظفر الدین بہاری، فرید الدین ہو یا بابا تاج الدین، قطب عالم ہو یا شاہ عالم، محدث سورتی ہو یا محدث دہلوی، محدث کچوچوی و محدث الفسانی، ہارون رشید ہو یا خواجہ عثمان ہارونی، شاہ مینا ہو یا یحییٰ مدیری، شاہ اجمل ہو یا خطیب الہند سنبھلی، اورنگزیب عالمگیر ہو یا صابر کلگری، نظام الدین اولیاء ہو یا عبد القادر بدایوی، شاہ برکت اللہ ہو یا سید سالار مسعود غازی، حاجی ملنگ ہو یا حاجی علی، صدر الشریعہ یا حجت الاسلام، صدر الافاضل ہو یا بختیار کاکی،
मखदूम बिहारी हो या मखदूम सिमनानी, आला हजरत फाजिल बरेलवी हो या इमाम गजाली मुहद्दिस आजम हो या मुफ्ती आजम हुजूर खतीबुल बराहीम सूफी निजामुद्दीन हो या हुजूर ताजु शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान कादरी अजहरी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे जो कोई भी हो, हर एक के दिल की तमन्ना ये जरूर होती है कि उनसे अल्लाह और उसके रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा निसार अहमद निजामी साहब किबला। अब देखिए, अगर वक्त होता तो मैं और भी सुनाता, मगर वक्त की किल्लत है। मिंबर नूर पर औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म सैयद कलीम अशरफ साहब किबला, देखिए सादात किराम कैसे क्यों ना, उनकी इज्जत अजमत करना हम सब पर लाजमी है, क्योंकि वो किसी आम खानदान से नहीं, नबी के खानदान से ताल्लुक़ है ना। हाँ, और मैं सैयद कलीम मियाँ के बहुत करीब हूँ, मैंने उनके अखलाक किरदार को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। हकीकत में ये सादात तो हैं, मगर इनको इस चीज पर कभी घमंड गुरूर नहीं है ना। नहीं तो आज अगर लोग खानदान का भी लोग दबदबा दिखाते हैं, है ना। हाँ, लेकिन अल्लाह ने इन पर अपना खास फजल फरमाया कि उलमा से बड़ी अकीदत रखते हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं। इनके यहाँ मैं तो इनके मदरसे में कानपुर में भी जलसे में गया हूँ, ये खुद दस्तरखान लगाते हैं, ये खुद इस तरह खिदमत करते हैं कि जैसे ये कोई आम शख्स या आम इंसान हो, जबकि इनका खानदान नबी का खानदान है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन पर रहमत और बरकत की बरसात अता फरमाए। इनके वालिद मोहतरम जो दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। उनके सदक़े तुफैल में हम सब पर अल्लाह रहमत और बरकत की बरसात अता फरमाए। और जिन लोगों ने इस जलसे को सजाया बचाया बसाया, अल्लाह सबके घरों में रहमतों और बरकतों की बरसात अता फरमाए, सबके घरों में बरकत की बरसात अता फरमाए। इस इल्तिफातगंज के तमामी मुसलमानों में इत्तफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए। एक वादा करें, जाएंगे नहीं ना। हाँ, क्योंकि यार शोएब बाबू कानपुर से चल कर आए हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है ना, हाँ, कि इनका भी सम्मान किया जाए, इनको भी सुना जाए, है ना। हाँ, क्योंकि मैं बहुत दूर से चल कर आया हूँ, रहने वाला मरडोबा का हूँ, मगर दूर से आज आया हूँ, ठीक है। तो मैं तुरंत निकलूंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ। मुझे कल भी 2 जलसों में बोलना है, तो रोज ही प्रोग्राम लगा हुआ है। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो कभी आपके दयारे मोहब्बत में हाजिरी की सआदत मिलेगी। मौला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमाअत की दुआएं मेरे साथ रखे। आप सब पर रहमतों और बरकतों की बरसात अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।